A very good evening to all of you, and we welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ on this Unveil platform and Unveil Talks. Uh, we are, um, yeah, so Unveil Talks has come up with a new concept, which is having a personalized conversation with our guest. तो वी हैव जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सेशंस होते जा रहे हैं, हमने हमेशा से उनको स्टेज पे गाते हुए सुना है या परमेश्वर का वचन बांटते हुए सुना है, बट हमने हमने हमको वी आर नॉट नोइंग दैट हाउ दे आर एबल टू सस्टेन सो लॉन्ग इन देयर कॉलिंग एंड परमेश्वर के इस जर्नी के बारे में, जैसे परमेश्वर ने उनके जीवनों को छुआ है, how their life has so tremendously changed and they've been blessing to many others. So this is how this is what we are doing at Unveil Talks. And so our today's guest happened, first of all I really want to apologize from the bottom of my heart. मैं आपको सभी को जो हूँ सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लेट हो गए, और पिछली बार भी जब हमने बोला था कि हम मंडे को आएंगे तो कुछ कारणों की वजह से हम आ नहीं पाए, because there was a lot of technical issue. But yes, we believe that God has called us to be more than conquerors, and yes, we are more than conquerors. And हम जयवंत से भी बढ़कर है, परमेश्वर का वचन कहता है. एंड ना परमेश्वर हमारी सारी सिचुएशन से बड़ा है, ये हम जानते हैं. सो इस बात को आगे बढ़ाते हुए, going forward, I just want to say few words about our today's guest. He is a worship leader, and he's a music teacher, and he's a youth advisor too in his church. So whenever I have been जब भी मैंने उनका worship sessions attend किया है, it has always been a blessing for me. So I'm really blessed whenever I attend. So I just cannot think of मुझे याद है एक जब हम prophetic youth ministries में हमने एक कैंप रखा था, तो कुछ कारणों की वजह से मैं वहां थी लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाई, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी. So I was feeling very bad, but I could hear him ना जो वो praise and worship करते हैं, the zeal which he carries, I really admire that. मैं उस चीज को सच में बहुत वो जैसे zeal को रखते हैं परमेश्वर के लिए. So I think not taking much time of yours, let's welcome our today's guest, Joel Matmari, with a clapping emoji. So praise the Lord. Hi, praise the Lord. Hi Joel, and I hope you're doing good. Yes. How are you all? Yes, we all are doing good, and मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ आपके जीवन के लिए, आपके प्यार के लिए, और आप जो हम आपको देख रहे हैं फिलहाल ऑनलाइन, आप इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं, एंड इट्स रियली बीन अ ब्लेसिंग. आई थिंक जब मैंने आपका वर्शिप अटेंड किया है, इट्स ऑलवेज बी आई हैव बीन ब्लेस्ड पीपल अराउंड मी. एंड ठीक है, my name is Preeti Reddy, and with my co-host Ralston David. Amen. Thank you everyone who has joined in right now. Hi Joel, and before we start, just bolna tha. I'm just we are facing a lot of issues right now. Like there was power cut at Joel's place and Wi-Fi issues at our place, and बहुत सारी चीजें हुई backstage में, background में. मैं ये viewers और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि just keep in prayer this point. Just pray for us at this moment that we are really, I believe this is going to touch many lives. Whatever we are doing, whatever we are speaking right now, there are a lot of things happening. I'm just praying, you also pray with us, that it would be a blessing to many. I know that there are many things happening behind, and let God be glorified. सिर्फ परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए इस समय. And every viewers just view in right now and just enjoy, just receive what the Lord has for you today. Amen. So praise God for everything. Welcome Joel brother.
to this Yes, thank you, amazing thank you. time we're gonna have together this moment. Yes, sure. Wow, praise God. Thank So, you so much for inviting Joel, me. Yes. yeah, you're welcome. You're welcome, Yeah. Joel. And आप क्वारंटाइन निकाल रहे हैं, मतलब आपकी 2 बेटियां हैं, थिंक Yes. आप you must be taking out wonderful time with them. Yes, exactly. मैं तो बहुत ही तो enjoy कर रहा हूँ हाँ, लॉकडाउन अच्छा, quarantine with my family, wife और 2 बच्चे, and I'm spending a good quality time with them. And साथ ही साथ प्रभु ने बहुत सारे गीत दिए ये वक्त में उसकी आराधना में, तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। So प्रभु इतना महान है, आमेन। इतना वक्त हमें संभाल के रखा है, आमेन। एक आंच तक आने नहीं दिया हमको, तो इसी बात पे प्रभु को धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें संभाल के रखा है पूरा क्वारंटाइन टाइम पे। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सेफ है आपके फैमिली के साथ। अगर आप सेफ है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि यस यू आर सेफ, और जिसके पास यीशु मसीह है उसको सेफ तो होना ही पड़ेगा। Hallelujah. उसने अपने लहू से, यस, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। Hallelujah. Amen. Wow. So this is how I spent my time. Wow, very nice, very nice. And so Joel, यहाँ पे हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी तक व्यूअर्स को बताया नहीं है, बट जोएल जो है 16 to 17 years मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, एंड 10 साल जो है वो एज अ वर्शिपर रह चुके हैं। तो जोएल, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जो जर्नी थी कि कैसे थी, कहाँ से शुरू हुई, और अभी तक आप वहां पे कैसे सस्टेन कर रहे हो। एनी स्टोरी यू वांट, कोई स्टोरी आपकी लाइफ की जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, which would be a blessing for our... Yes, sure. ऐसा है 2004 की बात है, जब मुझे पता चला कि यस मैं म्यूजिक के साथ कुछ कर सकता हूँ, तो पर ये यस बट ऑब्वियसली ये गॉड के और से गिफ्ट है मुझे, तो मैं चाहता था कि ये गिफ्ट मैं लॉर्ड के लिए यूज करूं। ओके, तो काफी टाइम मैं बस अपने चर्च में वर्शिप कर रहा था, बट एक इंसान का एक इच्छा होता है कि ना कि बाहर जाकर भी प्रभु की महिमा करना है, एक काइंड ऑफ मिनिस्ट्री करना है। तो 2004 में आई स्टार्ट विद माय टेस्टिमनी। ऐसा था कि मेरे को कीबोर्ड सीखना था। ओके, मैं ऑलरेडी आई एम अ ड्रमर, मैं रिदम परकशन प्ले करता हूँ, बट मेरे को कीबोर्ड सीखना था बिकॉज एक अंदर ज़ील था कि लॉर्ड के लिए मुझे कुछ अलग अलग तरीके से कुछ करना है। मैं सो कीबोर्ड सीखना था, सो आई वेंट टू बैंगलोर रायकोटा। आई थिंक प्रीति यू अवेयर अबाउट दिस। तो मैं रायकोटा गया था, तो वहां पे ऐसा हो गया, छोटा सा कीबोर्ड लेके गया था, यू नो दैट बैंजो वाला जो प्ले करते हैं ना, छोटा कीबोर्ड। यस तो वो टाइम पे मेरे पास कीबोर्ड भी नहीं था, तो मैं सोचा यार कैसे करूँ, क्या करना है क्या नहीं। सो मैंने मेरा फ्रेंड का कीबोर्ड लिया, छोटा सा कीबोर्ड था। तो आई वेंट देयर, फर्स्ट डे सब अच्छा हो गया, सेकेंड डे क्लासेस स्टार्टेड हुआ, तो सामने सर सिखा रहा है मुझे, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सा रे गा मा पा धा नि सा सी डी एफ जी वो सब होता है। तो उसने सिखाया, वो सिखा रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यार कैसे करना है। और ऐसा हो गया, मजेदार वाला एक किस्सा हो गया, उसने मुझे खड़ा कर दिया सबके सामने। आई थिंक मेरे को लगता है वहाँ पे 1300 स्टूडेंट्स थे एक रूम में। तो अभी आप सोचिए इतने सारे लोगों के सामने अगर एक बंदा उठ जाता है वहाँ पे, तो इट्स वेरी, मतलब एक इंसल्ट वाली बात हो जाती है। तो स्टिल मैं खड़ा हो गया। तो he asked me, कि कहाँ से आया। I said मुंबई। So he was like अच्छा इसलिए क्या। फिर वो डर पैदा हो गया। देन थर्ड डे से मैं लास्ट कंसोल के यहाँ पे बैठने लगे, एकदम लास्ट सीट पे, कि मुझे कोई देखना नहीं चाहिए, है ना। एक होता है इंसान को, यार एक बार इंसल्ट हुआ बस हो गया, अभी बार बार कहाँ से होगा। तो फिर एकदम जो मैंने फिर वो महीना पूरा पीछे निकाल लिया। तो बट सीखा कुछ नहीं मैं, क्योंकि ज़ील तो है अंदर लॉर्ड के लिए, प्रभु तेरे लिए कुछ करना है। तो लेकिन वक्त ऐसा आ गया कि मैं कुछ सीख नहीं पाया वहां पे, मुश्किल से मैं एक स्केल सीख लिया बस। तो बट घर पे आने के बाद
मैं बहुत रोया, मतलब है ना, लॉर्ड को लॉर्ड जो अच्छा चीज सीखने में गया था मैं वो सीख नहीं पाया। सो बहुत रोया कि एंड आई न्यू कि पवित्र आत्मा हमारे पास है, प्रभु ने हमें दिया है, जो इज द बेस्ट टीचर। सो यस ऐसा हो गया कि मैं वो मेरा फ्रेंड का कीबोर्ड लेके घर पे आके आई टू प्रैक्टिस 8 आवर्स, 8 आवर्स प्रैक्टिस, मतलब कुछ नहीं पता था क्या करना है, बट 8 आवर्स में बैठता था कीबोर्ड लेके। मेरा फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड्स है मेरे, उनको मैं देखता था कि कीबोर्ड ये लोग कैसे बजाते हैं, उनको देखकर फिर घर जाके फिर वापस 8 आवर्स प्रैक्टिस करना उनको लेके। सो अच्छा बताना ये चाहता था कि जील बहुत थी अंदर, अभी भी है जील, जील बहुत थी कि प्रभु के लिए कुछ करे और कुछ नए तरीके से करे मैन। मैन क्योंकि जब परमेश्वर हमको जब देता है तो वो अलग अलग तरीके से देता है, हमेशा वो न्यू यस देता है। यस यस मैंने कभी पुराना चीज देता नहीं, जिस वो जो दिया है उसके बाद वो देता नहीं है। तो मैं भी, मेरे अंदर भी एक चीज थी कि मैं प्रभु को एक नए तरीके से प्रभु को आराधना दे, है ना। तो ऐसा हो गया कि बस देखते गया, देखते मेरे फ्रेंड को दिखता था, वो प्रैक्टिस किया। फिर वन डे मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया कि आपको कीबोर्ड बजाना है। सो आई वेंट देयर, और मुझे, मैं लिटरली आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता मैंने वहां पे क्या बजाया, लेकिन उसके बाद जो मेरे को टेस्टमनी सुनने को मिले, ब्रदर आप बहुत अच्छा बजाया, आप जब बजा रहे थे तो अनॉइंटिंग को मैंने फील किया, तब मुझे पता चल गया बॉस मेरा काम हो गया है ना। जो यस मैं वहां यस नहीं कर यस पाया वो यहाँ पे आके हाँ पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, और परमेश्वर को महिमा मिले। हम्म और जर्नी अगर आप बात करें मैन हमारा मिनिस्ट्री का, अगर परमेश्वर ने ऑलमोस्ट मुझे भारत देश पे घुमाया है, amen? तो प्रभु को इस बातों Amen. पे महिमा मिले। मैन मैन प्रेज गॉड यस, ऑलमोस्ट यूथ के बीच में लाखों करोड़ों के आई मीन लाखों के बीच में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है। सो ये बात ऐसे ही नहीं मिलती है हमको, मतलब ये इतने लोगों के सामने, दिस इज नॉट लाइक, क्या बोल सकते हैं उसको, एक ऐसा चुटकी वाली बात नहीं है कि हाँ चल तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक दुकान में करेक्ट खिलौना खरीदने जाता है, पापा ये चाहिए तो हमको मिल जाता है, ये वो वाली बात नहीं थी। लेकिन इसके पीछे अभी जो व्यूवर्स है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है जब स्टेज पे लोग वर्शिप कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये इनको ऐसे ही आसानी से मिल गया है बहुत, लेकिन उसके पीछे हमने इतना जो मेहनत किया है, उसका पीछे करेक्ट हमारा प्रेयर, उसके पीछे हमारा प्रेयर है ना, हमारा यस सेक्रीफाइस यस है। मिनिस्ट्री मैन में ऊंचे से ऊंचे भी हमने किया है, नीचे से नीचे भी हमने मिनिस्ट्री किया है। इन शॉर्ट, यस अगर इन शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ, हमने 5 स्टार होटल में भी रिया है, और किसी के घर में झोपड़ी में भी जाके हमने रिया आमेन है। आमेन यस, अगर Yes. लाइफ में, या अगर लाइफ में सस्टेन होना है, मिनिस्ट्री में सस्टेन होना है, तो यू हैव टू डू वन थिंग, वो है अपने आप को एकदम हम्बल करना है ना। जब आमेन तक यस ये यस जब तक आप अपने आप को नीचे नहीं करोगे, तब तक यीशु मसीह आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। मैं हमेशा मेरे दोस्तों को यही कहता हूँ कि अगर लाइफ में सस्टेन होना है तो अपने आप को हम्बल करे। मैं एक किस्सा आमेन बताना चाहता हूँ। Amen. यस, एक किस्सा बताना चाहता हूँ। बचपन में एक बॉल को देखते थे, क्रेजी बॉल, यू नो अबाउट दैट हाँ क्रेजी बॉल, छोटा बॉल ये होता था, यस है यस ना, बड़ा मजा आता था करेक्ट खेलने। या अगर उस बॉल को हम देखेंगे, जितना हम नीचे मारेंगे उतना ऊपर जाता था। करेक्ट सही हाँ बात है। सेम हमारा यस लाइफ ऐसा है, जितना हम अपने आप को नीचे करेंगे उतना हम ऊंचा उठते जाएंगे। वाओ मैन या तो ये यस जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को हम्बल करिए। अगर आप चाहते हो कि आप प्रभु में आगे बढ़ना है, अच्छा सेवकाई करना है, तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, है ना। तो ये पहला चीज है कि हम अपने आप को हम्बल करें। अगर आप अपने लाइफ में मिनिस्ट्री को सस्टेन करना चाहते हो तो ये सारी चीज आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। और ये जो मेरा जर्नी है, बहुत ही मजेदार जर्नी था, मैं सेवकाई, और जो सेवा करने में मजा है वो किसी और में मजा नहीं है, मैं आपको बता दूं, यस बिकॉज एक वक्त ऐसा था कि जब हम संसार के लिए नाचते थे, संसार के लिए अगर ओके हम जो भी चीज करते थे संसार के लिए, वो सिर्फ एक दो पल की खुशी हमको मिलती थी। करेक्ट लेकिन जब से खुदा की उपस्थिति में हम नाचने लगे, गाने लगे, उसका मजा ही कुछ अलग है बॉस। आमेन आमेन करेक्ट जितने Amen. भी यूथ जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपने चर्च में वर्शिप करते हो, जो भी है ना, जो भी आपने जिम्मेदारी लिया है चर्च में, उसको दिल से बखूबी से निभाओ, ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। बस यस जो आप कर रहे हो उससे खुदा खुश होना बहुत जरूरी है सर। यस तो दिस इज, ये मेरा ऐसा था कि मैं अपने आप को सस्टेन रखने के लिए रोज दुआ करता हूँ कि प्रभु अगर मेरे अंदर घमंड है तो उसको तोड़ दे, कि ये चीज अगर जिसके अंदर ये चीज आ गई तो शायद वो सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
करेक्ट। ऐसा है। तो दिस इज हाउ मेरा मिनिस्ट्री का था। बहुत या सारे सो अद्भुत काम भी या प्रीति या आप बोल, नहीं, यही बता रहा था सॉरी कि आप कंप्लीट बहुत कीजिए, अपने क्वेश्चन बोल सकते तो हाँ। ये 15-16 साल में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम भी किया है ना, वर्शिप के द्वारा। मतलब बहुत सारे टेस्टिमनी सुनने को मिले हैं, बहुत सारे कुछ यूथ, स्पेशली लॉर्ड ने मेरे को यूथ के बीच में बहुत यूज किया है। तो जब भी यस मैंने कई 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 जगह पे मैंने वर्शिप किया है, तो कई सारे यूथ आके बोल रहे थे कि भैया हम ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेट थे, बहुत ही टेंशन में थे, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में हम आराधना कर रहे थे आपके साथ, पता नहीं अचानक अंदर से वो कुछ चले गया। मतलब ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज थे। सो ये सारी चीज होते हैं मिनिस्ट्री में, मतलब ऐसा है। तो ये सारी चीज मेरे साथ भी हुआ है। आमेन। सो जैसे आपने जोएल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बात किया, वर्शिप मैंने 5 स्टार होटल में भी किया है और छोटे झोपड़ी में भी, तो उसके ऊपर मेरा सवाल ये था कि जब आप 5 स्टार होटल में करते हो, जब आपको कोई बुलाता कि अरे मेरे घर पे आप, बर्थडे है मेरा शादी है, मेरा कुछ है, मेरे लिए ना प्रेजेंट वर्शिप कर, तो ऑब्वियसली वो एक चीज हिट होती है ना कि अरे मैं तो अभी इतना बड़ा 5,000 क्राउड को आई हैव लेड, मैंने वर्शिप में लीड किया, अब ये मुझे यहाँ बुला रहा है। तो आपने एक बात बहुत अच्छे से बोला कि ह्यूमिलिटी के ऊपर, हम्बल रहो तो है ना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लगता था, कभी ये थॉट आपके दिमाग में आया कि अरे मैंने अभी इतना बड़ा काम किया, अब ये मुझे इतने छोटे लेवल पे बुला रहा है, तो मैं, हैव यू एवर रिजेक्टेड दोज, या आप कंटिन्यू करते गए जैसे जैसे आपको दो, यू जस्ट कंटिन्यू? कैसा है ना प्रीति, मैंने पहली बात एक चीज को मैंने अपने अंदर गांठ बांध लिया था, भले वो चीज छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ पर प्रभु की महिमा है तो जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बता दूं प्रीति, ब्रदर रोशन, ये 15-16 इयर्स में बहुत सारे लोग ने यूज किया मुझे। ओके, अलग अलग ऐसे होता रहता है हर चीज में, अगर ऑफिस में जाए हर चीज में लोग यूज करते हैं। बट प्रेज गॉड, अगर मैं यूज हुआ है तो लॉर्ड की महिमा के लिए मैं यूज हो गया। आमेन। हाँ, तो मेरे को इतना दुख नहीं होता है कि लॉर्ड ने, मतलब लोग यूज किए, अगर यूज किया है तो उसकी महिमा के लिए यूज किया है। आज नहीं तो उसका कल रिवॉर्ड तो जरूर मेरे को मिलेगा, इतना मेरे को पता है। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, अगर मैंने ऊंचे लेवल पे वर्शिप करके आया हूँ लाखों के बीच में, मेरे लाखों के बीच में भी मेरा वही जोश रहेगा, 10 लोगों के बीच में भी मेरा वही जोश। तो दिस इज व्हाट, ये होना बहुत जरूरी है। वो मैंने देखा है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट हम लॉर्ड की आराधना कर रहा है। तो अच्छा हुआ परमेश्वर ने ये नहीं बोला जहाँ 5,000 10,000 रहूंगा तो ही मैं आऊंगा। उसने कहा सिर्फ 2 या 3, है ना। इतना महान परमेश्वर, मतलब इज अ किंग, हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हमारे शब्द में, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ 2 या 3 अगर भी आए तो मैं आ जाऊंगा। मतलब इतना बड़ा परमेश्वर। अगर इन शॉर्ट में, अगर हम इन शॉर्ट, अगर एक एग्जांपल के तौर में, अगर पॉलिटिशियंस को कहीं आना है, उनको स्पीच देना है, तो लोगों को जमा करना पड़ता है, बहुत लाख, मतलब इतने लोगों को जमा करना पड़ता है, खाने की बात नहीं है। बट यहाँ पे हमारा खुदा सबसे अलग है, जिसने पूरे कायनात को बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसके लिए वो चुटकी वाला काम है। वो कहता सिर्फ 2 या 3, तो हम कौन सी खेत के उंगली है यार, हमको तो जाना ही है, भले लाख हो या 10 लोग हो, हमको तो हमारा जोश कम नहीं करना। तो ये चीज मैंने अपने अंदर बांध के रखा है। मेरा जोश वही रहेगा जो 1 लाख के लिए, वो 10 लोग के लिए भी वही जोश रहेगा। यस। और मुझे नहीं पता, अगर आपने मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने यही बोला कि आई रियली एडमायर दिस वर्शिपर बिकॉज द ज़ील व्हिच ही कैरीज। तो जैसे आपने बोला कि वो ज़ील मेरे 5,000 लोगों के लिए वही रहेगा, 10 लोगों के भी वही रहेगा। वेरी नाइसली सेड जोएल। एंड और एक बात, जैसे आपने बोला you used to do of practice, so this type of आप देखोगे कि आजकल के यूथ्स में
I don't know, but practice नाम का तो I don't know, they Exactly. people find it difficult हो जाता है. तो Yes. तो ये आपने 8 घंटे का जो प्रैक्टिस करते थे आप, एंड ये कैसे किया? मतलब किसी मतलब खुद YouTube में देख के या किसी को फॉलो करके? यस यस, मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही खुशी होगी मैं जिनके बारे में बताना चाहूंगा. मेरा एक फ्रेंड था, विंस्टन. ओके, he's a very good player, keyboard player. And secondly, Emmanuel Gollar था, जिसके पास में ज्यादा हम लोग रहते थे. तो मैं इनको पीछे से देखता था. ओके, मैंने इनको कभी जाके बोला नहीं मेरे को सीखा या मेरे को सीखना है. अभी क्योंकि मेरे को सीखना है तो मैं कुछ भी करूंगा, है ना. करेक्ट. तो मैं उनको देखता था ये लोग कैसे बजाते हैं. जब वो लोग कॉर्ड पकड़ते तो मैं दिमाग में रखता था इसको ए माइनर बोलते हैं, अच्छा इसको बी माइनर बोलते हैं. तो यही चीज जाके मैं घर पे जाके प्रैक्टिस करता था. अगर अभी आप सोचते रहेंगे एक कॉर्ड 8 घंटा प्रैक्टिस करना मतलब क्या है, तो वो कॉर्ड को ना अलग अलग तरीके में बजाना, वो मैं प्रैक्टिस करता था कि इसको मैं कैसे बजाऊं. क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज मेरे अंदर रहता था कि कुछ भी करूँ तो थोड़ा कुछ हटके होना चाहिए हमारे खुदा के लिए. तो वो सारी चीज मैं खुद पे कॉर्ड को फाइंड आउट करता था कि इसका ये ऐसा होगा, तो ऐसा है. तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूथ अभी के जो जनरेशन है. मतलब मैं भी वही जनरेशन का हूँ, लेकिन अभी जो आ रहे हैं वर्शिपर्स, उनको प्रैक्टिस नहीं चाहिए. जहां तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, करेक्ट, दे इग्नोर प्रैक्टिस. यस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. भले मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ. ओके, मैं इतने साल से बजा रहा हूँ कीबोर्ड, आई एम इनटू म्यूजिक, बट स्टिल आई डू प्रैक्टिस. क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा चीज है ना, जितना रोज तुम बैठोगे उतना नया चीज तुमको मिलते जाएगा. हाँ मैन. तो जितने भी व्यूअर्स है, अगर आप की म्यूजिशियंस हो, वर्शिप लीडर हो, डू प्रैक्टिस. मैं आपको सजेशन करना चाहूंगी, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो. आजकल क्या हुआ है ना, आज किसी को अगर 2-3 कॉर्ड आ गया तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को सब आ गया. तो ये चीज हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए सर. डू प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो प्रैक्टिस करिए. एक नया चीज बाहर लेके आओ यार, एक कुछ नया चीज बाहर लेके आओ जो तुम कर सकते हो. ये चीज होना बहुत जरूरी है. माइंड में एक चीज होना बहुत जरूरी है कि हम किस खुदा की आराधना कर रहे हैं. वाओ. जब वो हमको बेस्ट देना भूलता नहीं है तो हम क्यों. आप लोग, मैं एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग हंस सकते हो मेरे प्रेयर के ऊपर, बट मेरा प्रार्थना ऐसा था, जितने व्यूअर्स है आप ध्यान से सुनिए. फर्स्ट आई टू प्ले द ड्रम. जब भी मैं प्रोग्राम्स में ड्रम्स बजाता था ना, ड्रम्स में किक होता है, टॉम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें होते हैं. तो आई टू प्ले ऑक्टोपैड आल्सो. तो मेरा प्रेयर ऐसा होता था, लॉर्ड अगर मैं किक भी बजाऊं ना, उसमें तेरी महिमा होना चाहिए. एक सिंपल सा अगर एक किक बज रहा है, धक, लॉर्ड वो धक में भी आपकी महिमा होना बहुत जरूरी है. इफ आई एम प्लेइंग सम रोल्स, वो रोल्स में भी आपकी महिमा होना चाहिए. तो ये तरीके की मेरी प्रार्थना होती थी. जब ये प्रार्थना करके आई टू स्टार्ट माय प्लेइंग, तो उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिलता था. और साथ ही साथ एनॉइंटिंग होना भी बहुत जरूरी है. अगर तुम म्यूजिशियंस हो, साथ में एनॉइंटिंग कैरी करना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि एनॉइंटिंग ऐसा चीज है ना, अपने आप आपको लोग चिपक जाएंगे. एनॉइंटिंग ऐसा चीज है, क्लियरली आपको लोग ऐसे ही चिपक जाएंगे कि बॉस इसमें कुछ तो बात है. कुछ बात नहीं है, और अंदर एनॉइंटिंग है. जब आप एनॉइंटिंग में बजाओगे वो अलग ही रिजल्ट आएगा. अगर आप ऐसे नॉर्मल बजाने जा रहे हो, अरे आज प्रोग्राम डेट्स आया तो बजाने, वो उसका अलग रिजल्ट आएगा. बट जब एनॉइंटिंग में आप बजाओगे उसका रिजल्ट ही अलग होगा, जो मैंने अनुभव किया है. तो जितने भी म्यूजिशियंस है, वर्शिपर्स है, एनॉइंटिंग में चलो. मैंने एक प्रचारक से सीखा था, उन्होंने कहा कि नेवर लीक योर एनॉइंटिंग. अगर सोचिए, अगर कोई पाइप में से अगर कुछ लीक होता है तो अपने आप पानी खत्म हो जाएगा. सही बात है टैंकी से? सही है, करेक्ट. इन सेम वे, अगर एनॉइंटिंग लीक हो गया हमारा, तो हमारे अंदर से सब खत्म हो जाएगा. जितने हमको पूछते थे वो कभी नहीं, जितने हमको पूछते थे, वाह करते थे, वो कभी नहीं पूछेंगे. बिकॉज एनॉइंटिंग ऐसा चीज है, अपने आप लोग अपने को चिपक जाएंगे एक मैग्नेट की तरह.
तो बहुत जरूरी है ये चीज। यस, तो बहुत अच्छा बोला आपने कि लोग ऐसे ही चिपक जाएंगे, बिकॉज आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव दैट जब भी आराधक आराधना करता है या प्रचारक प्रचार करता है, पीपल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू देयर अनॉइंटिंग, नॉट टू देम। सो वेरी वेल सेड दिस, व्हाट आई आल्सो बिलीव, if anointing is there, and yes, the worship session would be a blessing to many others. एक worship का session बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। One more thing I wanted to add, Preeti, I'm sorry. No, it's okay. One more thing I wanted to add, अगर आपका एक बैंड है, अगर आपका बैंड का लीडर है, तो बैंड के अंदर वन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। वाओ। अगर वन स्पिरिट नहीं है तो मैं बोल दूं कि आप फिर स्टेज पे कुछ भी कर बैठोगे आप लोग, बिकॉज वन स्पिरिट में आप जब कनेक्ट होते हो ना, वो माहौल ही अलग हो जाता है। तो लीडर को बताना जरूरी नहीं होगा कि तू अब ये बजा, ड्रमर को गिटार वाले को बोलना नहीं पड़ेगा कि अब तू ये बजा, लेकिन जब वन स्पिरिट में हम बजाते हैं ना, वो म्यूजिक ही अलग बाहर आता है। वो एकदम अद्भुत होता है, मतलब तो वन स्पिरिट होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा है। वन स्पिरिट की जब आप बात कर रहे हो जोएल, तो आप क्या बोल रहे हो कि यूनिटी में रहना चाहिए या प्रार्थना, मतलब जैसे कि जब नोटिफिकेशन, मतलब आपको जब पता चलता है दैट वी आर गोइंग टू लीड वर्शिप, सो है ना, आप क्या बोल रहे हो कि एक दिन का पूरा प्रार्थना करो एक मिलके, या जहां पर भी अपने अपने घर में एटलीस्ट 1 घंटे का कमिटेड प्रेयर करो? कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस? इस पे आप थोड़ा कई बार क्या होता है ना, जब हमारा प्रोग्राम्स होता है तो टीम क्या करता है ना, मीटिंग होने स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले साथ में गैदर होता है, फिर प्रार्थना करता है। ओके, सो ये एक तरीका का प्रेयर हो गया कि ये बताने के लिए कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आप हमारे साथ में रहिए। लेकिन वही चीज अगर वो डेली रूटीन चलता रहेगा, ओके, अगर वो डेली रूटीन में अगर बैंड तुम्हारा चल रहा है प्रार्थना में, तो उसका बात ही कुछ अलग होगा। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग प्रार्थना प्रेयर जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वी आर जस्ट आस्किंग कि लॉर्ड यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस प्रोग्राम एंड ऑल, हम लोग ये प्रार्थना करके चलते हैं। लेकिन अगर बैंड डेली अगर एक प्रार्थना कर, डेली अगर एक प्रेयर में रहेंगे, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग होगा। ऐसा है। हाँ, तो बहुत सारे क्या होता है ना, वर्शिपर्स लोग 5 मिनट पहले प्रेयर करते हैं, 2 मिनट पहले करते हैं, और वो प्रेयर भी कैसा होता है ना, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा, तो प्रेयर भी कैसा होता है, प्रभु हम जब अभी जा रहे हैं, आप यू टेक कंप्लीट कंट्रोल, यूजर्स, है ना, एक 2 मिनट का प्रेयर खत्म, डर 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 खत्म करके चले जाते हैं। अगर यही प्रेयर अगर पूरा हफ्ते भर अगर चलता रहेगा, तो वो अलग ही पावर होगा, है ना, एक अलग ही अनॉइंटिंग होगा, मैं ऐसे समझता हूँ। अगर आपके पास बैंड है, तो बैंड एक लिंक, एक सिंक में चलना बहुत जरूरी है। मैं जस्ट एक सोच रहा था अभी, जस्ट थॉट आया, लाइक अभी जैसे जोएल ने बोला कि एक यूनिटी में रहना चाहिए वगैरह, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक पास्टर और एक वर्शिप लीडर का रिलेशन कैसे होता है, मतलब जैसे आप इतने 10 प्लस या 17 इयर्स मिनिस्ट्री में है, सो कैसे आपका रिलेशन पास्टर के साथ था, मतलब वो कैसा बिल्टअप होते गया, या फिर एज अ वर्शिप लीडर ग्रो होते गए, या फिर वो उनका साथ रिलेशन बहुत जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना होना चाहिए एज इन चर्च में? एक्चुअली पास्टर के साथ one minute, Joel, sorry to Joel, yes. sorry to interrupt. Before you answer this question, I request all my viewers, if you have any question, अगर आपका कोई भी सवाल जोएल के लिए वर्शिप को लेके, यूथ रिलेटेड क्वेश्चंस, please type in the comment section. Please do not send your message, your questions in the messenger or some other app where we won't be able to answer you. It's a humble request that, please type in the comment, and so that we'll be able to answer your questions. Thank you. Joel, you can continue. Over to you. Yeah, thank you.
पास्टर के साथ रिलेशन रखना बहुत ही जरूरी है। यू कैन आस्क व्हाई, बिकॉज एक वर्शिप लीडर वर्शिप कर रहा है, ओके, और पास्टर एक प्रीच करने वाला है, तो बिफोर दैट एक वर्शिप लीडर को ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। ओके ओके, क्योंकि प्रीचर आके वो शो करने वाला है, वर्ड को शो करने वाला है, तो उससे पहले वर्शिप लीडर को ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। ओके, बिना ग्राउंड तैयार किए हम लोग कैसे शो कर सकते हैं ना, वर्ड को कैसे हम डाल सकते हैं, जब तक हम लोगों को तैयार नहीं कर सकते आत्मा में खुदा, क्योंकि एक वर्शिपर का काम है। मैं एक ऐसा शब्द देता हूँ कि एक वर्शिप लीडर एक मीडिएटर है बिटवीन गॉड एंड पीपल। ओके, तो एक वर्शिपर का काम है कि लोगों को खुदा से जोड़ाना। सही बात है। तो जब हम उनको तैयार करते हैं, तो नेक्स्ट जब पास्टर प्रीच करते हैं ना, तो क्योंकि वो लोग वो फ्लो में रहते हैं, वो अनॉइंटिंग में रहते हैं, पास्टर जो भी वर्ड को देंगे तो उनके दिमाग में फटक से घुसता है, उनकी आत्मा में जरूर जाता है, क्योंकि वो लोग वो अनॉइंटिंग के रेलम में है। ओके, वो अनॉइंटिंग में वो लोग घूम रहे हैं, तो जो भी पास्टर वर्ड देते हैं तो उनको कैच आराम से हो जाता है। तो वर्शिपर और पास्टर के बीच में रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, मैं ये बता रहा हूँ। और मेरा तो बहुत अच्छा रिलेशन था, क्योंकि प्रीचिंग के पहले वर्शिप होता था। yes. तो मेरा प्रीति तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि पास्टर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिलेशन अच्छा नहीं करोगे, एक अगर आप पास्टर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रख रहे हो, ठीक है, आप वर्शिप करके आप चले गए हो, लेकिन दिल में क्या है, पास्टर के लिए कुछ तो कड़वापन है। सही बात है, सही बात। हाँ, तो अगर तुम वो चीज को लेके वर्शिप करोगे तो क्या वो वर्शिप लॉर्ड को एक्सेप्ट होगा? नहीं एक्सेप्ट होगा, करेक्ट, नहीं एक्सेप्ट तो दिस इज मतलब वर्शिप एक ऐसा हो जाएगा कि बस करने के लिए कर दिया उसने। करेक्ट, सही बात है। अगर तुम्हारा रिलेशन पास्टर के साथ अच्छा है, अगर तुम वो दिल से आराधना कर रहे हो, उसके बाद वही फ्लो में पास्टर फ्लो हो सकता है। तो रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है पास्टर के साथ, ऐसा है। And Ralston, I think sorry. जस्ट आज के मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स मैंने देखा है कि दे समटाइम्स वो लोग सबमिशन नहीं करते, मतलब दे थिंक दैट कि सबमिशन इतना जरूरी नहीं है आज के तारीख में। लाइक मुझे आई एम अ म्यूजिशियन, मुझे कॉर्ड्स आता है, मुझे गिटार बजाना आता है, मुझे ये सब चीज आता है, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, तो फिर आई कैन जस्ट सिंग एंड आई कैन जस्ट मूव, मैं गा के सब मेरा करके निकल जाऊंगा। बट तो ये चीज जैसा ब्रदर ने बोला कि सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे ये समझ में आ गया कि जोएल ब्रदर आज जो है और वो जो आगे होने वाले, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सबमिशन। अथॉरिटी के अंदर सबमिशन में थे, जो चीजों जो उन्होंने उनके हाथ में जो चीजें दी गई, उन्होंने उनका मतलब मजा नहीं उठाया, बट सबमिशन में काम किया। और वो होना बहुत जरूरी है। अगर तुम एटीट्यूड लेके चल रहे हो कि मेरे को बजाना आ रहा है, मेरे को गाना आ रहा है, तो वो चीज तुम बाहर भी कर सकते हो। करेक्ट है ना? अगर तुम ये चीज बाहर, अगर कुछ लोग हैं, हाँ मैं बाहर जाके बजाऊंगा, एक लोग होते हैं थोड़ा सा, अभी के जनरेशन गरम खून है, तो थोड़ा सा उल्टा जवाब दे देते हैं, हाँ मैं अभी बजाऊंगा नहीं चर्च में, मैं बाहर जाके बजाऊंगा। बाहर जाके बजाते हैं, सब पैसा वैसा मिलता है, लेकिन वो एवरलास्टिंग तक नहीं रहता है वो। करेक्ट, ट्रू। ओके, जो खुदा में बजा रहा है, जो खुदा के अंदर चल रहा है, वो एवरलास्टिंग तक रहेगा। तो ये सारी चीज है। जितने भी म्यूजिशियंस है, वर्शिप लीडर्स है, पास्टर के अधीन में होना बहुत जरूरी है, सबमिशन होना बहुत जरूरी है। जितना हो सकता है अपने आप को नीचे कर दो। अगर सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है, ओके ठीक है, सॉरी, गलती भी नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो ये एक छोटी छोटी चीज है ना, परमेश्वर देखता है, और इसका फल वो अपने वक्त पे देता है। तो ये सारी चीजें हैं। और या फिर कभी आपने ऐसा फेस किया है कि क्राउड से आपको किसी ने बोला है कि नहीं ये बराबर नहीं गा रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, इसका लाइफ ठीक नहीं है, इसको क्यों खड़ा किया है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस कभी आए क्या आपको ऐसे? कैसा है ना, हमारे गॉस्पेल में इतने स्मार्ट लोग हैं ना, कभी सामने आके नहीं बोलते। तो पीछे बोला होगा, अभी इंसान है यार, गलती इंसान से ही होगा। मेरे से कभी, मैं एडमिट करता हूँ, मेरे से भी कभी कभी गलती हुआ है, सुर लगाने में कभी गलती हो जाता है, या फिर प्लेइंग कॉर्डिंग्स में गलती हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज अगर देखते रहेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपके पीछे कोई बोल रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है।
क्यों मालूम है? वो आज इंसान पीछे इसलिए बोल रहे क्योंकि वो पीछे है। पीछे करके वो हमारा पीछे बात कर रहा है। अगर आगे रहता तो आगे से बात करता। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आके बाद में बताते हैं। इनफैक्ट मैं वर्शिप करने के बाद, सब होने के बाद, मैं मेरे टीम से पूछता हूँ, या फिर मैं जो लोग मेरे, अगर कोई आए क्राउड में बैठे, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, तो उनको पूछता हूँ कैसा था, मतलब कैसा लगा, क्या है, कैसा है, कुछ कम ज्यादा हुआ क्या, तो उनसे रिव्यू मेरे को मिलता है। तो उसके बाद मैं काम करता हूँ कि हाँ इधर गलती हुआ, तो वो चीज को लेके मैं काम करता हूँ। तो ये सारी चीज है। तो कभी निराश तो नहीं हुआ कि अगर सुनने को भी मिला कि कैसा गा रहा है, क्या गा रहा है, मैं कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मालूम है जिसको मैं वर्शिप दे रहा हूँ वो खुश है तो बस हो गया। Amen. True. वो ये सारी Wow, very nice. And Ralston, जब आपने ये सवाल किया सबके ऊपर, I have personally witnessed Joel's life that he has been under submission for years. मतलब वो इतने submission में चले, and he is the perfect example. Because क्या है ना, कभी कभी हम एक चर्च में टिके रहते हैं क्योंकि हमारा फादर पास्टर है, या फिर हमारे पास्टर से बहुत अच्छा जमता है, ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम। बट यहाँ पे ना जो जितने पास्टर्स मेथोडिस्ट चर्च पे चेंज होते गए, हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता और रॉल्स्टन को भी नहीं पता, इसलिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ही वाज ऑलवेज अंडर सबमिशन। वो इंट्रोडक्शन में बोला मैं भारत घूम के आया हूँ, ही नेवर कभी वो चर्च से ऐसा बोलते ना मैं चर्च छोड़ के गया, मैंने दूसरा चर्च ज्वाइन किया, कभी हमने नहीं सुना है। आई हैव बीन, जब भी मैं चर्च गई हूँ, आई हैव ऑलवेज सीन देम स्टैंडिंग देयर एंड वर्शिपिंग। सो जोएल, इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि मैं भारत देश घूमा हूँ, एंड तो आई एम 100% श्योर इस बात को लेके कि आपको किसी ना किसी ने तो बोला ही रहेगा कि व्हाई डोंट यू जॉइन आवर चर्च, मतलब आप हमारा चर्च ज्वाइन कीजिए, आप हमारे चर्च में आके वर्शिप कीजिए, आप अपना मतलब फुल्ली ये जो आप चर्च में हो उसको छोड़ दीजिए, आप कंप्लीटली हमारे चर्च में आके वर्शिप कीजिए। सो हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? कैसे आपने इस बात को रिएक्ट किया? ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आए थे मुझे कि आप हमारे यहाँ पे आके वर्शिप करो, है ना। हाँ. किसी ने बोला कि हम आपको पे भी करेंगे, तो ये वो मतलब था। बट मेरे को पता था मेरा मदर चर्च कौन सा है, क्योंकि मैं देखिए इंसान अगर घर से बाहर जाता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन रात को वो अपने घर पे ही जाता है। सही बात है, करेक्ट। सही बात। तो ये सेम चीज ऐसा था कि बहुत जगह मतलब गया नहीं, किसी ने बुलाया ऐसा गया नहीं, लेकिन ठान लिया था कि नहीं जो है मेरा चर्च है, मतलब क्योंकि मैंने कमिटमेंट है मेरा कि जहाँ से मैं उठा हूँ, बिकॉज मेरे को अभी भी याद है मेरा चर्च से ही मैंने स्टार्ट किया है। मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट, हर किसी का पहला इंस्ट्रूमेंट तो ट्रिपल कांगो होता है, प्रीति नोज दैट। मैं वो चर्च में मेरा वहां से शुरुआत हुआ, तो बेसिकली मेरा पैशन वहां से स्टार्ट होगा, मेरे मदर चर्च से, मतलब मेथोडिस्ट चर्च से मेरा जानना शुरू हुआ। तो मैंने कभी मेरे दिमाग में ऐसा लाया नहीं कि मैं अपने आप को मेरा चर्च चेंज कर दूंगा या फिर मैं कहीं और जाऊंगा, या तो कोई मेरे को अच्छा पे कर रहा है मैं वहां जाऊंगा। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि बॉस मैं कोई और चर्च में स्विच कर लूं। मैं अपनी चर्च में बहुत खुश था, खुश और खुश रहूंगा। बिकॉज क्या होता है ना, अगर हमको ऐसा लगता है अगर मेरे चर्च में अगर कुछ कमी लग रहा है, ओके, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चर्च में म्यूजिक नहीं है, अगर उनको छोड़ के मैं अगर बाहर जाके सिखाऊं, तो मतलब क्या होगा कि मेरा चर्च वाले को छोड़ के मैं बाहर वाले को सिखा रहा हूँ, या मैं बाहर जाके वर्शिप कर रहा हूँ, जबकि मैं मेरे चर्च को बताया नहीं कि वर्शिप क्या है। सबसे पहले हमको घर से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैं वहीं पे हूँ, मेरे चर्च में ही चल रहा है अभी तक, और मेरे को नहीं लगता है कि मैं आगे कभी किसी और के साथ मैं मतलब जुड़ सकता हूँ, ऐसा है। तो जितने भी व्यूअर्स है यही बोलना, हाँ यही मेरा सवाल था, व्यूअर्स से क्या, जितने व्यूअर्स है ये बोलना चाहूंगा, अब जहाँ पे हो वहीं पे रहना, क्योंकि आप दूसरे जगह पे स्विच हो जाओगे, वो आप लोग को 1 साल 2 साल रखेंगे, ओके। अगर उनके ही चर्च में कोई और तैयार होगा तो वो आपको कभी भी बोल सकते हैं बॉस अभी हमारे यहाँ पे एक बंदा तैयार हो गया है,
या बंदी तैयार है, सिस्टर है, ब्रदर तैयार हो गया है, गिटार बजा रहा है, वर्शिप कर रहा है, अभी आप प्लीज कहीं और चले जाइए, आप अपनी चर्च में, तो मतलब क्या होगा, है ना? देखिए अपना चर्च तो अपने को वापस ले लेंगे, लेकिन वो एक होता है ना कि हमने जो रिलेशन बिल्ड करके गए थे अपने चर्च से, फिर वापस वो दूसरे जगह जाके वापस आना, वो एक अलग सा माहौल बन जाता है। तो जितने भी व्यूअर से ये बोलना चाहूंगा, आप जहाँ पे भी हो वही रहना, वहीं पे आराधना करना। और ये सबसे बड़ा की था ब्रदर के लिए, जोएल के लिए, कि वो आज के तारीख में इतने पैशनेट है, इतने एस्टैब्लिश्ड है. दैट इज द की, आई गेस. सबमिशन टू अथॉरिटीज एंड द पास्टर्स एंड submission, yeah, and also Bible talks about being obedient and being submissive. That's the key. ये आशीष होने का. So I think I have seen him walk in submission, and really it has been great. So one more thing I wanted to add. One more thing. Sorry. Yeah, sure. Yeah, जितने भी यूथ है, म्यूजिशियंस है, वर्शिपर्स है, आपके एल्डर को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, जितने भी एल्डर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. भले आपके फैंस फॉलोइंग बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप अपने आप को वही रखो जहाँ पे आपने पहले से रखा था. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिसको हाई बोल रहे, एक टाइम पे हाई बोलते थे लेकिन आप सिर्फ हाथ दिखा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. ओके, हाई बोलो और हाथ भी दिखाओ. ये बताना चाहता हूँ कि अब आपके एल्डर को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये भी सारी चीजें है ना, लॉर्ड हमारे अंदर देखता है. ओके, परमेश्वर यही नहीं देखता है कि आप स्टेज पे कितना गा रहे हो, कितना अच्छा बजा रहे हो, साथ ही साथ आपका लिविंग लाइफ कैसा है, आपके चर्च के प्रति, आपके चर्च के लोगों के प्रति कैसा है, वो भी परमेश्वर देखता है. तो जितने भी व्यूअर्स हैं अपने एल्डर का रिस्पेक्ट करें, ना, उनका सम्मान करे जहाँ पे भी मिलते हैं. वो एटीट्यूड मत रखो, अभी मैं स्टेज पे रहता हूँ तो अभी नहीं, मैं अभी उनको दूर से हाई करूंगा ना, नजदीक जाके बात करो उनसे. ये सब सारी चीज है तो लॉर्ड आपको रिवॉर्ड दे सकता है. Amen. 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 Yes. So जोएल, आप ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इट हैपेंस, हम आराधक करते हैं, हम प्रचार करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमको किसी ना किसी का बात का बुरा लगा रहता है. इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया. सो समटाइम वी टेंड स्टैंड विद अ अनफॉरगिविंग हार्ट. तो कुछ मैसेज आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को who stand on the stage एक अनफॉरगिविंग हार्ट के साथ वो खड़े थे? सो मैसेज आप देना चाहेंगे? ये जरूर. देखिए, बाइबल बताती है अगर आप वर्शिप कर रहे हो. सॉरी 1 मिनट, सॉरी सॉरी 1 मिनट, बिकॉज आज तक मैं समझती हूँ कि आपने जैसे ना वर्शिप करते आए हैं इतने साल से, आई एम श्योर दैट समवेयर और द अदर आपको भी किसी बात का बुरा लगा होगा किसी इंसान के प्रति. सो हाउ कैसे आपने इस चीज को डील किया, और आप क्या मैसेज देना चाहोगे वर्शिप फॉर द स्पेशली पीपल हु स्टैंड विद एन अनफॉरगिविंग हार्ट? यस, मेरे साथ भी ऐसे काफी टाइम हुआ है. कई बार मैं स्टेज पे स्ट्रगल भी किया, वर्शिप कर रहा हूँ, क्योंकि एक आराधक को उसको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कब उतर चुका है. उसको खुद को फील होना चाहिए उसके प्रेजेंस को. तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं वर्शिप कर रहा था, लेकिन मैं प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था. अच्छा म्यूजिक चल रहा, अच्छा गा रहा है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम हैं, जिस स्थिति के को हम मांग रहे हैं, अगर वही नहीं है तो हमारा गाना बजाना बैठता है. तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं कि यार क्या हो रहा है, मतलब एकदम एक अलग ही माहौल बन गया था. मतलब तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे, एकदम डिस्टर्ब हो गया था. तो सडनली मैंने वहीं पे प्रेयर किया कि लॉर्ड, जो भी बातें हैं सारे बातों को निकाल, है ना, मैं तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ यहाँ पे. मैं नहीं चाहता कि मैं बस आए गाए और चले जाए, लेकिन मैं तेरी उपस्थिति को मांगता हूँ. तो जैसे मैंने प्रेयर किया, देन नेक्स्ट सॉन्ग मैंने स्टार्ट किया, बट पावर ऑफ गॉड इतना पावरफुली था वहाँ पे. तो कई बार क्या होता है ना, हम कई बार ऐसे गलती कर बैठते हैं जो हमको पता नहीं चलता है. ठीक है, तो हम माफी मांगना भूल जाते हैं.
जरूरी ये नहीं है कि आप वर्शिप के एक दिन पहले गलती किए होंगे या फिर 1 घंटे पहले गलती किए होंगे, 1 महीना पहला भी गलती किया होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें होता है कि पर वर्शिप जितने भी आराधक है उनको ये बोलना चाहूंगा कि अब जब भी वर्शिप करते हो एक फॉरगिवनेस वाला भी प्रेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्योर है, होली है, वो पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। तो बाइबल बताती है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर हमारा आत्मा स्ट्रांग नहीं है, बस अंदर कचरा भरा है, सब है, वो सारी बातें अगर अनफॉरगिवनेस या फिर किसी के प्रति हम बुराई बोले हैं, किसी को हमने उल्टा सीधा बोला है, वो सारी बातों को अगर हम अंदर रख के आराधना कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि लॉर्ड को वो भाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने भी वर्शिपर्स हैं एकदम तैयारी के साथ जाओ। जब भी हम जंग पे जाते हैं, कोई चीज के लिए जाते हैं, इंटरव्यू जाने के टाइम हम क्या करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, हम अपने आप को एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं कि यार कल इंटरव्यू है, बॉस है ना, पैसे की सैलरी की बात है, जॉब की बात है, तो हम अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे तो हमारा खुदा है, हमारा बाप है। जब हम उसकी आराधना करने जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत तैयारी करना बहुत जरूरी है चर्च, बिकॉज मैंने पहले कहा कि हम मीडिएटर है, हमको हमारा काम है लोगों को खुदा से मिलाने का। क्योंकि लोग जो वहाँ पे आते हैं अलग अलग तकलीफ से आते हैं, अलग अलग क्या बता सकते हैं, एक बॉन्डेज के साथ आते हैं, वो लोग कुछ पाना चाहते हैं वहाँ पे। अगर हमने खुदा से नहीं मिला तो फिर हमारा सब कुछ व्यर्थ है वहाँ पे, ऐसा है। तो अपने मन को पहली बार अपने आप को खाली कर दो। तुम जितने भी वर्शिपर्स है सुन रहे हैं मुझे, म्यूजिशियंस है, इनफैक्ट ये सारी बात म्यूजिशियंस के लिए भी है, मैं वर्शिपर्स ले रहा हूँ लेकिन सारे म्यूजिशियंस के लिए भी, बिकॉज आप लोग का भी एक रोल है उसमें। तो वर्शिप लीडर ही नहीं टारगेट होता है, उसमें आपका भी रोल है। तो जब भी आप बजा रहे हो, जब भी आप गा रहे हो, तो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दो। ओके, अपने आप को खत्म कर दो, जैसे है ना, पौलुस कहता है बाइबल में कि प्रभु मुझे कुछ मिले या ना मिले लेकिन मैं तेरी आराधना जरूर करूंगा। तो वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है ना। दाऊद कहता है प्रभु मैं अपने आप को पूरी तरह से खाली करता हूँ। तो ये चीजें हमारे अंदर बहुत होना जरूरी है कि प्रभु मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ, अपने आप को तोड़ और अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, तू भर दे तेरे सामर्थ्य से। तो तब लॉर्ड जो काम करता है ना वो अद्भुत तरीके से करता है। प्रेज गॉड। सो जोएल, एक सिचुएशन मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि कल को मैं वर्शिप करने के लिए कांग्रीगेशन के सामने खड़े रहने वाली हूँ। ओके, तो अभी आज क्या हुआ है कि मेरा और रॉल्स्टन का झगड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो बात जो है मेरे दिमाग में या मेरे मन में चलते रहती है। तो बाइबल स्पीक्स अबाउट रेकन्सिलिएशन, मतलब क्या बोलते हैं रिकन्सिलिएशन को, आई फॉरगॉट, सॉरी, मतलब सामने सामने जाके बात करो, हाँ ना, बात करके मिटा दो भी है। सो डू यू थिंक कि हमको भी ऐसे ही करना चाहिए कि हम जस्ट बिकॉज हम वर्शिप में कर ले रहे ऐसे ही नहीं, बट हमारा जिंदगी भी शायद कहीं ना कहीं ऐसे ही रहना, जब हमारा झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ ऐसे गलत फहमियां हो जाती है तो हमको जाके माफी मांगनी चाहिए, अरे ना छोड़ गलती हो गया लेकिन नहीं होगा जो भी। सो क्या ये बात थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी कैन यू नो, और इज इट इम्पोर्टेंट, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी बस चलो छोड़ देते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे घर से ही है। ओके, मेरी वाइफ है, ठीक है, अभी रिसेंटली क्वारंटाइन में उनकी कजन्स भी यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो हमारे घर में संडे प्रेयर चलता था, प्रेयर चलता है, ओके, क्योंकि अभी हम बाहर नहीं जा सकते। तो होता है ना घर में एक छोटे से नोक जोक में अगर थोड़ा सा अनबन हो जाता, थोड़ी सी बातचीत नहीं हो जाती है, ठीक है। तो मैंने मेरी वाइफ से एक चीज सीखा। अभी देखिए वो उनका बातचीत नहीं था, एक दिन ही हो गया, एक दिन बात नहीं था, संडे चर्च है अभी दूसरा दिन। तो वो मेरे को बता रही थी मेरी वाइफ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा प्रेयर में बैठना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कैसे करूं। तो वो जाके उसने मैटर को सुलझा दिया, है ना, एक दूसरे को लोग गले मिला। क्योंकि क्या होता है ना, जिसके अंदर प्रभु का प्यार है, जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, ओके, तो वो बंदा ये नहीं सोचेगा कि मैं माफी क्यों मांगू,
वो ऑटोमेटिकली उसके पास जाएगा, गले मिलेगा, जो भी करना है वो माफी मांगेगा, फिर प्यार करेगा कि बहुत जो भी है खत्म कर दे यहाँ पे। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि सिचुएशन ये नहीं कि हाँ माफ करने से आप छोटे नहीं जाओगे, ओके, माफी मांगने से भी आप छोटे नहीं हो जाओगे। अल्टीमेट ये बात होना है कि परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये बात मेरी वाइफ से सीखा यार, मैंने मान लिया, बोला इसने मतलब इसके अंदर इतना है कि उसको एक कुछ तो बातें अटक रही थी उसके अंदर कि परमेश्वर की महिमा करने से कुछ तो बात रोक रही है, वो बातों को ही मैं खत्म कर दूं। तो ये चीज मेरी वाइफ ने वो सारी बातों को खत्म किया, तो वो जो दिल से फिर वो आराधना करने लगी वो संडे के टाइम पे, तो परमेश्वर बहुत ही अद्भुत काम किया है। तो ये इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ, जो भी है या ये, तो जो भी बात है सुलझा दो, खत्म कर दो मैन। क्योंकि आपके क्या होता है ना, ये सारे लोग नोटिस भी करते हैं कई बार, नोटिस करते हैं कि इनके बैंड में कुछ तो लफड़ा चल रहा है बॉस, इनके म्यूजिशियन में कुछ तो लफड़ा चल रहा है, ये दिखने में आता है। कई बार मेरे को भी ऐसा समझ में आया, कई बार बहुत सारे लोगों को समझ में आता है इनके बैंड में कुछ तो लफड़ा चल रहा है। ओके, क्या चला है बीच में? अगर प्यार मोहब्बत है तो प्यार हमेशा दिखेगा, सही बात है। सही बात है। अगर अंदर नफरत है तो नफरत भी दिखता है सामने। जब प्यार दिख सकता है तो नफरत भी दिख सकता है। तो एक दूसरे को माफ करो, आराधना करो यार, बस और कुछ नहीं। वो चीज करो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो चीज मत करो जो मनुष्य को अच्छा लगता है। करेक्ट। अभी क्या होता है ना, बैंड में अगर 4 लोग हैं, ठीक है, एक से झगड़ा हो गया, ठीक है, और दूसरा भी इसके अगेंस्ट में, सामने वाले मेरे ही अगेंस्ट में, और 3 जन एक साथ में, अगर मैंने एक के साथ सुलझा दिया तो दूसरा बचा रहता है कि यार ये तो इसको माफ कर दिया, भी एक हो गया। तो क्या हो जाता है, वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं, यार ये लोग तो एक हो गया, अभी अपना क्या हो गया। ठीक है, अगर इनका झगड़ा है तो तुम दोनों भी साथ में मिलकर रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर यही सिखाता है कि प्यार करो यार, बस उन्होंने एक ही चीज सिखा दी है, प्यार करो एक दूसरे से। तो ये होना बहुत जरूरी है। Praise God. Yes. तो जोएल, इसके ऊपर मेरा एक और भी क्वेश्चन है कि कोई लोग कभी कभी हम ना ऐसा कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा और रॉल्स्टन का झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने परमेश्वर से तो माफी मांग ली है, मैंने परमेश्वर की भाई हाँ मेरी बातें, मेरी आदतें या फिर मेरी एक्शन के द्वारा जो है रॉल्स्टन को हर्ट हुआ है, तो मैंने परमेश्वर से माफी मांग लिया है, तो रॉल्स्टन से क्यों मांगना है? तो इस बारे में आपका क्या कमेंट है? यस, परमेश्वर का पहला आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। क्लियर? मैं इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अभी पड़ोसी ये नहीं कि हमारे बाजू में जो रहता है, अगर मैं 916 में रह रहा हूँ तो 917 वाला पड़ोसी नहीं है मेरा, ठीक है। पड़ोसी वाला मेरा सामने वाला बिल्डिंग वाला भी है, मलाड में जो रहता है वो भी मेरा पड़ोसी है, विरार में रहता है वो भी मेरा पड़ोसी है, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे, अभी प्रीति का सवाल है कि मैंने परमेश्वर से तो माफी मांग ली है, ठीक है, लेकिन आपको पता चला है कि परमेश्वर ने माफ किया आपको? नहीं। हाँ, क्या होता है ना, अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। अगर जब भी हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड से माफी मांगता है, तो स्पिरिट टॉक्स, है ना, एक आत्मा हमसे बात करता है कि एक सुकून महसूस होता है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं या फिर माफी मांगते हैं। अगर परमेश्वर ने माफ किया, मैं ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि परमेश्वर माफ करते तो एक अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक सुकून आता है, एक शांति सा महसूस होता है कि बहुत सब कुछ सही हो गया है। अगर परमेश्वर से चलो आपने माफी मांग लिया, लेकिन एक दिमाग में ये तो चल रहा है यार मैंने इसको तो माफी नहीं किया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने परमेश्वर से माफी मांगा है, लेकिन दिमाग में एक तरफ से ये भी चल रहा है मैंने इसको माफ नहीं किया है, तो दोनों तरफ से आप ही जकड़ जा रहे हो यहाँ पे कि यार मैंने इसको माफ भी नहीं किया, लेकिन क्या परमेश्वर माफ किया है क्या मेरे को? हाँ, तो ये चीज होना चाहिए कि इसको माफ, पहले ही माफ करो तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग से आपको माफी मिल जाएगा, ऐसा है। yes. तो ये सारी देखो, जब भी हम परमेश्वर से बातें करते हैं या फिर माफी कुछ मांगते हैं ना, तो मेरे एक्सपीरियंस से बताओ, एक पॉजिटिव वाइब्स आता है अंदर, एक सुकून महसूस होता है कि बहुत लॉर्ड ने किया है कुछ तो ऐसा। कुछ लोग होते हैं ना, अरे मैंने परमेश्वर से माफी मांगा, हट गया, मेरा काम हो गया,
वो हट हो के चले गया। जाते तो वो हट ही रहते हमेशा। वो हाँ, तो कुछ होता नहीं उनकी जिंदगी में, ऐसा है। तो ये है। या जैसे आपने बोला कि ना आपने एक चीज आपकी वाइफ से सीखी है। यस, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपकी वाइफ और आप दोनों एक अच्छे यूथ एडवाइजर है। मैंने उनको भी थोड़े 2 मिनट के लिए सुना था व्हेन शी वाज टॉकिंग टू समवन। सो यस, आप लोग दोनों बहुत अच्छे यूथ एडवाइजर है। यस, इवन शी सो एडवाइज एनी देना एडवाइस भी करती है। चाहोगे फॉर यूथ? सॉरी, मैंने कहा कि कोई एक ऐसा एडवाइस आप हमारे यूथ या हमारे व्यूअर्स को या म्यूजिशियन जो भी देख रहे हैं, वर्शिपर्स, कोई एडवाइस आप देना चाहोगे? क्योंकि मैं खुद देख चुकी हूँ कि यू आर अ वेरी नाइस एनकरेजर फॉर द यूथ्स इन योर चर्च एज वेल। आपने हमेशा आपके यूथ्स लोग को एनकरेज करते हुए मैंने देखा है। सो कोई एक ऐसी एनकरेजिंग बात या एक ऐसा कोई मैसेज आप इस प्लेटफॉर्म में देना चाहेंगे थ्रू अनवेल टॉक? एक चीज मैं बताना चाहूंगा जितने भी वर्शिपर्स है, बाइबल एक चीज क्लियरली बोलता है कि तुम एक दूसरे का बढ़ चढ़ के तारीफ करो। बाइबल टॉक्स अबाउट दिस कि आप एक दूसरे का बढ़ चढ़ के तारीफ करो उनका। तो जितने भी म्यूजिशियंस है, दूसरा म्यूजिशियंस का तारीफ करो, ना कि उनको नीचे गिराओ कि क्या बजा रहा है, कैसे बजा रहा है। अगर वो मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाला म्यूजिशियन थोड़ा यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, तो मैं सबके सामने नहीं बोलता हूँ उसको, ठीक है। अगर मेरे पास उसका नंबर है तो उसको मैं पहले पूछता हूँ कि तू सजेशन लेगा क्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर मैं उसको मैं सीधा उसको बोल दूंगा कि तू इधर गलत बजा, इधर ये बजाया, तो उसको हर्ट हो जाएगा, ये बंदा कौन है आके सीधा बोल रहा है क्या बजाया, कैसे बजाया। तो अगर मैं इससे पहले उसको पूछ लूं कि सजेशन लेता है कि, अगर वो लेता है, तो जब उसने बोल दिया कि हाँ मैं लेता हूँ, तो फिर मेरे को बोलना बहुत जरूरी है। ओके, तो जितना भी हो सके एक दूसरे का तारीफ करे, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करे। अगर कहीं लग रहा है आपको कि ये बंदा कहीं तो गिर रहा है, उसको एनकरेज करे। पहली बात, जितना हो सकता है ना एनकरेज करे। क्या पता आपका एक एनकरेज से वो बंदा ऊंचे लेवल पे भी जा सकता है, करेक्ट, माइंड को चेंज कर सकता है मैम। अगर वो सोचा होगा कि मेरे को कोई पूछ रहा नहीं है तो मैं अपनी पुरानी वाली जिंदगी जी लूं, हो सकता है आपका एक एनकरेज उसको स्वर्ग की ओर ले जा सकता है मैम। तो जितने भी यूथ है, एक दूसरे को एनकरेज करे, उनको बढ़ावा दे, उनका तारीफ करे। इवन दो अगर आप अच्छे म्यूजिशियंस हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा बजाता हूँ, फिर भी आप दूसरे का तारीफ करे, उनको एनकरेज करे बॉस। उनको सजेशन भी दो कि तू इधर ये करके देख, और समझाना भी तरीका होता है, उनको समझाइए कि ऐसा ऐसा कर, तो वो लोग भी खुशी से, अरे हाँ मेरे को अच्छे से समझा रहा है। आजकल क्या हुआ है ना, सीखने वाले बहुत कम हो गए, सिखाने वाले बहुत ज्यादा पैदा हो गए। नहीं सीरियसली, आई थिंक रोशन भाई आप एग्री होंगे, सीखने वाले बहुत कम हो गए, सिखाने वाले बहुत ज्यादा आ गए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीखो भी और सिखाओ भी, क्योंकि मैं कई बार मैं जब मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो उनसे मेरे को कुछ सीखने को मिलता है। वाओ। लेकिन मैं वहाँ पे मैं ये नहीं सोचता कि मैं स्टूडेंट से क्यों सीखूं, मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे जब मेरे को नया चीज मेरे को सीखने मिल रहा है तो मैं बाहर जाके दूसरे यहाँ पे इन्वेंट करूंगा ना। और मैं स्टूडेंट को थैंक्स भी बोलता, अरे तेरे से कुछ सीखने को मिला रहे मेरे को इसमें से, तो वो भी खुश हो जाएगा, अरे सर सीखा मेरे से कुछ तो। हाँ, तो वो बूस्ट हो जाएगा ना अंदर से। तो वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करेगा, तो और कुछ वो करके दिखाएगा कि सर खुश हो जाए, सर खुश हो जाए। ये हाँ, तो सीखो और सिखाओ, एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, बस यही है परमेश्वर के राज्य में होना जरूरी है। ऐसा है। पता नहीं जोएल, मेरे क्वेश्चंस तो रुक ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई एम जस्ट गेटिंग, मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट I want to ask if you have any question, because I think it has been so half of the time I have only taken, but if you have any questions, because I have a question for Joel. Yes. One question is there. It's क्या है मालूम है question. It's like अभी
as you are a youth advisor, so ऐसे कौन से चीजों से एज अ मतलब बहुत सारे यूथ लोग आके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, बट ऐसे कौन से चीज है जो सब मैक्सिमम यूथ फेस कर रहे हैं आज के तारीख में, एंड देखिए द एडवाइस जो आपने दिया है एंड हाउ इट हैज इंपैक्टेड हिज लाइफ. बहुत सारे लोग का सवाल ज्यादातर आप समझ सकते यूथ है तो, बट ऑब्वियसली उनका ज्यादा सवाल रिलेशनशिप के ऊपर ही होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा क्या करने से क्या होगा, कैसे क्या होगा. मतलब इन शॉर्ट अगर बता दूं, अगर वो लोग मेरे को पूछते आके कि रिलेशनशिप लेके कि मैं ये लड़की से प्यार कर रहा हूँ या ये लड़के से प्यार कर रहा हूँ, तो मेरा सेकंड सवाल ये होता है कि वो लड़की या लड़का प्रभु से प्यार करता है क्या. ट्रू. हाँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना. अगर वो बोलेगी मैं तेरे लिए प्रभु में आऊंगी, तो ये बात याद रखना, वो कभी नहीं आएगी या फिर वो कभी नहीं आएगा. क्योंकि एक बार इंसान को वो चीज हासिल कर लिया तो वो उसको बस हो गया ना, उसके बाद क्या है ना. करेक्ट. सो एकदम इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रिलेशन में जा रहे किसी के साथ, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लॉर्ड में कितना है, कितना प्रभु से प्यार करता है. जब वो प्रभु को जान लेगी या जान लेगा, फिर वो तुम्हारा रिलेशन बहुत ही अच्छा चलता रहेगा, एकदम स्मूथली चलता रहेगा. तो ऐसे सवाल आते हैं रिलेशंस को लेके. तो और भी गलत रास्ते पे अगर लोग अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या करना है. हम लोग आगे आना चाहते हैं लेकिन आना नहीं हो रहा है, शैतान रोक रहा है. कुछ चीज में नहीं जाना चाहते तो फिर भी उसमें हमको लेके जा रहा है. तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग का भी ऐसा सवाल होगा कि पिछली जिंदगी में नहीं जाना चाहता फिर भी जा रहा हूँ. क्या होता है ना, कई बार संगति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाइबल बताती है अच्छी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बदल देता है. तो इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा फेलोशिप किसके साथ हो रहा है. तुम्हारा फेलोशिप अगर अच्छे लोगों के साथ हो रहा है तो तुम अच्छा चीज सीखोगे. अगर गलत लोगों के साथ चल रहे हो, देखो मेरा पहले का संगति ऐसे लोगों के साथ था जो दारू पीते थे, है ना, नशा करते थे. मैं उनके साथ घूमता था. जितने भी व्यूअर्स है, अभी वो नजर से मत देखो मेरे को, ठीक है. तो इनके साथ बैठना, मतलब इन शॉर्ट मैं क्लियरली बिंदास बताना चाहता हूँ, मैं बार्स में बैठता था, बियर बार में बैठता था, लेकिन क्या लेके बैठता था, एक माजा या तो एक पेप्सी. ठीक है. क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे अंदर प्रभु का डर था. ओके. मेरे अंदर परमेश्वर का बहुत डर था कि अगर मैं एक गलत स्टेप भी ले लूं तो इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा मेरे साथ. okay? तो उनको ये समझाता था, अगर तुम्हारा संगति, अगर तुम्हारा एक दोस्त बोल रहा है कि आज एक दिन पी ले कुछ नहीं होगा, तो वो दोस्त को उसी दिन बाय बाय कर दो. क्योंकि वो आज बोला है, अगर उसने तेरे को आज बोला है आज लास्ट है, वो कल भी बोलेगा अरे छोड़ ना, दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकते क्या. और अभी के यूथ इतना दोस्तीदारी में फैल गए हैं, अरे दोस्त है यार उसके लिए कुछ ना करना पड़ेगा. लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे कि उनकी जिंदगी नाश की ओर जा रहा है. करेक्ट. हाँ. तो ऐसे लोग के साथ फेलोशिप करो जो तुमको सही बता सके, सही रास्ता दिखा सके. अगर तुम गलत भी कर रहे हो तो तुमको एक डर आएगा, नहीं बॉस मेरे को जो सिखाया था उसने वो मेरे को याद रहेगा. अगर बुरी संगति वाला अच्छा नहीं बता सकता कुछ आपको, वो सही चीजें कभी नहीं बताएगा आपको. तो ऐसा है. तो जितने भी यूथ है, व्यूअर्स है, यही बताना चाहता हूँ, अच्छे फेलोशिप में चलो, आपकी जिंदगी अच्छा चलेगा. तो यही चीज में मेरे आप जैसे बोल रहे हैं कि एसोसिएशन बहुत मैटर करता है. आप जिसके एसोसिएट करते हो वो आपका कॉलिंग को हेल्प करता है और आपको हायर लोकेशन पे लेके जाता है. यस. मैन. तो ये होना बहुत जरूरी है. तो जोएल, मैं समझती हूँ कि आप टायर्ड नहीं हुए हैं कुछ. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन के लिए. तो ये लास्ट क्वेश्चन है. तो जैसे कि एग्जांपल एक हेलो. just before that can you hear me properly? Yes. Hello Preeti, you there? Hello. Yeah, listening. Hey, yeah, just one Facebook question that has come and I feel ये बहुत interesting है. So just एक question एक बोल देता हूँ. ठीक है. ये क्वेश्चन ऐसा है कि
वो बंदा ऐसा पूछ रहा है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू सिंग द सॉन्ग परफेक्टली एज द ओरिजिनल वर्जन, ठीक है। जैसे कि आज के तारीख में नाउअडेज लॉट ऑफ सिंगर्स है जो ओरिजिनल वर्जन पे फोकस करते हैं, समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है कॉयर को फॉलो करना, हाँ, अगर स्पेशली वो न्यू सॉन्ग है तो। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू ओरिजिनल के जैसे ही गाना है या अपने वी कैन डू मॉडरेशन अनकंफर्टेबिलिटी के हिसाब से? हाँ, देखो जरूरी नहीं है ओरिजिनल को ही हमको कॉपी करना है, ठीक है। अभी अभी ऐसा चल रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने पहले ही बोला था कि आप कुछ अपने अंदर से कुछ क्रिएटिविटी करो, अपना इनोवेटिव कुछ बताओ। अगर तुमको लग रहा है कि इतना भी वो गाने को ऐसा तोड़ो नहीं कि वो गाने का वो मजा ही चले जाए। हाँ, ओके, अगर एसेंस बना रहे चले हो, जाए। हाँ वो फील खत्म मत करो वो गाने का, वो उसके अंदर ही आप बना रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं गाना बनाता हूँ ना तो मैं सीधा रिलीज नहीं करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को शेयर करता हूँ ये गाने कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया है। ओके, मैं मेरी वाइफ को बताता हूँ देखो ऐसे ऐसे गाना बनाया है, सही लग रहा है क्या। सो फिर वो लोग मेरे को बताते थोड़ा लिरिक्स इधर ये कर, थोड़ा सा इधर ये कर, क्योंकि अगर मैं वन मैन शो बन जाऊंगा इसमें तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब भी आप कुछ करते हो ना तो 4 लोगों को पूछो जिसको म्यूजिक नॉलेज है। ओके, अगर आपको भी म्यूजिक नॉलेज है तो वो गाने को ऐसे बनाओ, ज्यादा भी तोड़ो नहीं, थोड़ा सा हल्का सा तोड़ो जितना लोगों को अच्छा लगे सुनने के लिए, है ना। देखो अल्टीमेट हम लोग गीत बना रहे, हम लोग सॉन्ग बनाते हैं तो प्रभु की महिमा के लिए हम बनाते हैं, तो परमेश्वर को जो भी देना है बेस्ट दो, लेकिन ओरिजिनल सिंगर भी वो सुन के ऐसा ना हो जाए कि इसने मेरे गाने को क्या कर दिया है ना, वो भी चीज होता है। हाँ, तो क्योंकि वो भी अपना मेहनत किया होता है, क्योंकि वो भी खुदा की उपस्थिति में बैठकर वो गाने को लिखता है, कंपोज करता है, तो गाने को एज इट इज रहने दो, या तो उस पर कुछ एड अप कर सकते हो तो ऐड करो। ओके, जितना तुम बीच बीच में क्रिएटिव थिंग्स डाल सकते हो वो चीज करो, लेकिन ज्यादा गाने को तोड़ो नहीं, ऐसा है। Good. So I think some of the pickup lines, whatever नल ने जो भी अभी तक कुछ कुछ बोला, I think it is all about taking corrections and walking in submission, being obedient. This is what we have learned for whatever he has spoken till now. Yes. And जोएल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। रोशन, आपको कोई क्वेश्चन करना है? Because No, then I'm this will be the last question. perfectly fine, Preeti. Done. Yeah. You're done? Yes. Okay. Yeah. So जोएल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्शिप बैंड है, ठीक है, एक वर्शिप बैंड है, उस वर्शिप बैंड में मैं हूँ, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, क्योंकि कैसा है, जब हम फोरफ्रंट में खड़े रहते हैं, वी फेस लॉट ऑफ टेम्पटेशंस, मतलब टेम्पटेशंस एक हो जाता है, दिन ब दिन हम कुछ ना कुछ झेलते हैं या फिर कुछ हो जाता है। सो ऐसा हुआ है कि मैं कोई गलत संगत में चली गई हूँ, जैसे दारू पीना, ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि मुझे वो आदतें छोड़कर उस पे वर्कआउट कर वापस आना चाहिए, या मेरे वर्शिप लीडर को बोलना चाहिए गिव मी अ ब्रेक, आई नीड अ, मेरे को ब्रेक दे दे थोड़ा, वर्शिप लीडर से शेयर करना चाहिए? आपको क्या लगता है इन चीजों से मैं कैसे बाहर आऊं, क्या करूं? देखिए, जब कोई इंसान, एग्जांपल अभी हमारे सोल्जर्स को ले ले, ठीक है, सोल्जर्स को जब उनको फील्ड पे जाना है तो वो आधा अधूरी तैयारी करके नहीं जाते हैं। करेक्ट बात है, तो जो भी तैयारी करके जाते हैं उनको पता है अभी जा रहा हूँ फील्ड पे तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है, क्योंकि मेरा सर जो बॉस है, जो भी उनका होगा हेड, वो खुश हो जाए। इन सेम वे हमको भी अपने आप को ऐसा तैयारी करके जाना है। देखिए, हम 2 नाव में पैर रख के सेवा नहीं कर सकते। अगर आप दारू भी पी रहे हो फिर वर्शिप में भी जा रहे हो, एक बार आपको आपका लीडर मान जाएगा, चल ठीक है कोई बात नहीं तू खड़े हो जा, लेकिन क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? क्योंकि जो भी हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग, वो फ्रेग्रेंस स्वर्ग तक जाता है, वो हेवन में जाता है, ठीक है। अगर बंदा नशा भी कर रहा है, ठीक है, और तुम चर्च में भी गा रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो चर्च का रूफ के ऊपर भी तुम्हारा फ्रेग्रेंस नहीं जाएगा।
हाँ Right? तो जितने भी है, हाँ, एक प्रीति ने एक अच्छी बात बताया कि वर्शिप लीडर को बताना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स हाँ वर्शिप लीडर को बताना बहुत जरूरी है। बॉस मैं कहीं तो अटक रहा हूँ, हो सकता है वर्शिप लीडर उसको हेल्प करेगा कि बॉस कि तू अभी थोड़ा रुक जा, तू अपने आप को फिर से बिल्डअप कर, है ना, फिर से अपने आप को बिल्डअप कर, फिर से तू वैसा बन के आ जो पहला था तू। तो वर्शिप लीडर को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं गिर रहे हो आपके क्षेत्र में, अगर आपके जीवन में कहीं आप गिर रहे हो, तो आपके लीडर को बताना बहुत जरूरी है कि बॉस मैं कहीं तो गिर रहा हूँ, मुझे बचा ले। तो वर्शिप लीडर बचाएगा, टीम बचा सकता है कि बॉस इधर नहीं गलत है, तू इधर अपने आप को थोड़ा सा रोक ले। तो बताना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई है नशा भी कर रहा है, ठीक है, तो मत करिए आराधना, मत करिए, वेस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा उसमें। क्या होगा, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे सुर में गाएंगे, मतलब क्या होगा। लेकिन जो परमेश्वर को चीज अच्छा ही नहीं लग रहा है, तुम फुकट में वो गा रहे हो। हम लोग ये जो नशा वशा गाने वाले सब बार इंडस्ट्री में चल रहा है, दे आर सिंगिंग फॉर रियल हीरो के लिए गा रहे हैं, और हम लोग रियल हीरो के लिए गा रहे हैं। ओके, इट्स वेरी डिफरेंट। करेक्ट रियल हीरो के लिए और हम लोग रियल हीरो के लिए गा रहे हैं, तो रियल हीरो के लिए हमको रियल होना बहुत जरूरी है। Amen. तो ये चीज है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो स्टेज मत चढ़िए कभी ना, पुलपिट पे जाइए और आराधना करें। अपने आप को ब्रेक दो, अपने आप को फिर से तैयार करो। हो सकता है ब्रेक के बाद लॉर्ड तुमको डबल पोर्शन अनॉइंटिंग में लेके जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। बट कभी कभी पता है जोएल, ऐसा भी हम सोचते हैं ना कि ना मैं नशा भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तू देख मैं अच्छा भी गा रहा हूँ क्योंकि मेरा आवाज भी अच्छा है। And sometimes we think that, my voice is good, people are dancing, people are, enjoying my worship. So ये thought के ऊपर मैं चाहती हूँ। यस, मैं डेफिनेटली बोलूंगा। अगर देखिए, एक अनॉइंटेड बंदे को एक अनॉइंटेड ही पहचान सकता है, क्लियर है। अगर मैं गा रहा हूँ, ठीक है, मैं गा रहा हूँ गाने के लिए भी, जैसा प्रीति ने सवाल किया कि नहीं मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं है या फिर वो फ्लो में नहीं है, खुदा के साथ संगति में नहीं है, वो लोग आपका तारीफ करके जाएंगे, ठीक है, वो लोग आपका तारीफ करेंगे। लेकिन जो अनॉइंटिंग में ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे पास्टर्स रहते हैं, बहुत सारे लीडर्स बैठते हैं जिनको पता है अनॉइंटिंग क्या है, तो वो लोग आपको पहचान पाएंगे। बिकॉज देखो, वर्शिप पर मैंने बोला, वर्शिप कर रहे हो तो प्रेजेंस आना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर तुम गा रहे हो, तुम प्रेजेंस ही नहीं आ रहा, तो मतलब क्या। ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स में हुआ है। अभी एग्जांपल, एक मीटिंग में अगर 2-3 वर्शिपर्स होता है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो इंडस्ट्री के भी लोग होते हैं, आके गाते हैं, ठीक है, गाते अपना गा के निकल जाते हैं लोग, मतलब है ना। तो इसमें क्या होता है, लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम किस चीज के लिए आए, क्या करने आए। तो इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ, एक अनॉइंटेड बंदा दूसरे अनॉइंटेड को पहचान सकता है। वाओ, yes. So before we so this comes to an end for our question and Q&A round. So before we sign off, Joel, we want you to sing a song, any praise or worship song for all our viewers, and end it with a prayer. I'll sing my. You want to say something? Sorry, I forgot to ask. Yeah. You want to say something, Ralston? Yeah, I just want to say no, actually मुझे ये बोलना है कि the way Joel is saying everything like real talks, real things, and I believe कि बहुत सारे लोगों को it's a blessing right now whatever is happening. Praise like God. Talking real stuff is very important now. और मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स पे अगर जो लोग भी हैं, अगर ब्लेस हो गए, आई वांटेड यू ऑल टू राइट इन कमेंट बॉक्स की मेरे को भी पता चले कि है ना कितने लोग ब्लेस हो गए, क्या है, कैसा उनके मन में क्या चल रहा है। सो आई वांटेड टू सी ऑल दिस थिंग्स एंड यस मैं आई वांटेड टू सिंग मेरा रिसेंट सॉन्ग है सुन ले दुआ। अगर आपने सुना है तो वही गीत को गाना चाहता हूँ, सुन ले दुआ मेरे खुदा, तू ही है सुनता दुआ। And yes, I wanted to pray. Even I wanted to pray for yours.
खुदा तू ही है सुनता दुआ, अंधियारे इस जीवन में रोशनी भेज खुदा, सुन ले दुआ मेरे खुदा तू ही है सुनता दुआ, अंधियारे इस जीवन में रोशनी भेज खुदा, मेरे खुदा सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, यही है इल्तिजा, मेरे खुदा सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, यही है इल्तिजा। जितने भी वर्शिपर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका ये प्रार्थना होना बहुत जरूरी है कि प्रभु तो मुझे छू ले, क्योंकि उसका एक स्पर्श काफी है हमारे जीवन के लिए। ओके, सो द लाइन्स गो लाइक दिस, छू मुझको भर मुझको अपनी रूह से, बदल जाएगा मेरा जीवन बस तेरे छूने से, छू मुझको भर मुझको अपनी रूह से, बदल जाएगा मेरा जीवन बस तेरे छूने से, मेरे खुदा सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, यही है इल्तिजा, मेरे खुदा सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, यही है इल्तिजा। Amen, amen, amazing. Oh, let's pray. Amen. Yes, and special एक prayer request था, if you can pray for all the people who are affected by the virus, because we are coming across, हम देख रहे कि family members ना कुछ लोग affect रहे हमारे लोग, so हम चाहते हैं कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करें. Sure. Let's pray. Yes. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Father. We worship you, Master. We exalt your name, Lord. Let your name be glorified, Lord. Thank you, Father, for this wonderful time, Master. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। प्रभु जैसे अनविल टॉक पर प्रभु जो सारी बातें हुई खुदा, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे लीड किया प्रभु, गाइड किया प्रभु, ताकि इन सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूं प्रभु। अगर मैंने कोई गलती की तो प्रभु क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर खुदा बाप। और इस वक्त दुआ करता परमेश्वर, जितने भी व्यूवर्स हैं मुझे सुने हैं परमेश्वर राजा, उनके जिंदगी में काम होने दे खुदावन राजा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर, जितने भी उनके सवाल थे, उनका प्रश्न, उनका सवाल का जवाब मिल चुका है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन राजा, उनके परिवार को तो आशीष कर परमेश्वर राजा, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर खुदावन राजा। जितने भी वर्शिप लीडर्स है, म्यूजिशियंस है खुदावन राजा, जो भी राज में बढ़ रहा है खुदावन राजा, तो उनको तेरे सामर्थ से, तेरे लहू से भर दे परमेश्वर राजा। जब भी आराधना करेंगे खुदा, जब भी वे म्यूजिक प्ले करेंगे खुदा, तेरी अभिषेक उतर आए खुदावन राजा। ऐसे दुआ करते यीशु मसीह राजा, जैसे वे गीत गाएंगे परमेश्वर राजा, और एक दुष्ट आत्मा बाहर निकले प्रभु, ऐसे सामर्थ को भेज खुदावन राजा। जब वे गिटार बजाए प्रभु, जब वे ड्रम्स बजाए प्रभु, जो भी म्यूजिक बजाए परमेश्वर राजा, हर एक जितने भी दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, हर एक बोझ यीशु के नाम में हल्का हो जाए प्रभु। ऐसे दुआ करते यीशु के नाम में परमेश्वर, आप ऐसे सामर्थ को इस वक्त भेज रहे प्रभु। जितने लोग मुझे सुन रहे, देख रहे प्रभु, इसी वक्त खुदा उनके जीवन में तू काम को कर परमेश्वर राजा। एक नए टेस्टिमनी को हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर राजा, कि अनविल टॉक के बाद उनके जिंदगी में कुछ तो काम हुआ है परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं के लिए खुदावन राजा। इन दोनों को तू ब्लेस कर परमेश्वर, इतने अच्छे होस्ट करे परमेश्वर, इन्हें आशीष कर परमेश्वर, इनके पेज के द्वारा कई लोग आशीष को पाए प्रभु। ऐसे दुआ करते यीशु मसीह राजा। इसके बाद और भी जितने लोग आएंगे परमेश्वर राजा, उनसे भी तू बातें कर खुदा बाप। ऐसे दुआ करते यीशु मसीह राजा। प्रभु हम अपने आप को नील करते हैं परमेश्वर, हम अपने आप को खत्म करते हैं खुदा, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर राजा। होने दे तेरी महिमा खुदा। इस वक्त दुआ करते हैं स्पेशली प्रभु, अब जानते हैं जो महामारी चल रही है खुदा, हर एक वायरस को खत्म करने वाले आप हो खुदा राजा। आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है परमेश्वर राजा, और हम जानते हैं प्रभु आप आपके वक्त पे सब कुछ सही करने वाले हो परमेश्वर राजा। जितने लोग भी परिवार है प्रभु, जो भी कोविड से
परेशान है, यीशु के नाम में खुदा उन्हें छूकर चंगाई दे परमेश्वर राजा। मैं इतना जानता हूँ प्रभु, हर घुटना टिकने वाली है, हर जुबान कबूल करने वाली है कि आप यीशु मसीह प्रभु है खुदा राजा, और आप ऐसे कामों को कर रहे हो प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके परिवार को आशीष कर परमेश्वर राजा, उनके घर के बर्तन को आशीष कर परमेश्वर राजा, उनका तेल आटा कभी खत्म ना हो परमेश्वर, पुराना तो रहे लेकिन नया भी आता रहे प्रभु, ऐसे दुआ करते हैं यीशु मसीह राजा। प्रभु हमें लोगों के लिए एग्जाम्पल बने प्रभु, ऐसे दुआ करते प्रभु। और एक शैतान के काम को, गड़बड़ी के काम को यीशु के नाम में तोड़ते हैं और बांधते हैं परमेश्वर राजा। आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। ये अनविल टॉक्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, आप इसका ताबा लीजिए प्रभु और आप चलाइए खुदा राजा। सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रभु। हम अपने आप को घटाते हैं प्रभु, स्पेशली मैं अपने आप को घटाता हूँ खुदा, अपने आप को खत्म करता हूँ, अपने आप को मारता हूँ प्रभु, केवल आपके नाम को ऊंचा होता था प्रभु। सारा महिमा, आदर, जलाल, इज्जत केवल आपको मिले खुदा बाप, क्योंकि आप ही इसके हकदार हो खुदावन राजा। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन 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 Amen. Wow, मजा आ गया। Thank you, Roshan, brother, and Preeti. Yeah, and here is my cute darling daughter. Wow. So cute. Wow. She's So Siana. cute. Hi. Yes. Siana, baby. Say hi. So cute. So yes, I want to thank all my viewers for joining in. And I really, before thanking anyone, I just want to thank God, Holy Spirit, Jesus, because this session, we face a lot of internet connections issues. Yes. And also we want to thank Joel for having a lot of patience with us. Yes. And so, seriously, also, it was so much of problem to connect, but this time when we came back, we were more powerful. It's all because of the Lord. And on behalf of the Unveil team, on behalf of Let's Live Life team, our church pastors, we are really thank you, Joel, for accepting our invitation and coming on this Unveil talk. And I really want to thank for our night prayer team also, who've been praying for this. So team, a big tons of thanks to you all. I think I want to thank all of you who've been praying for this. So all glory to God alone. And it is only because of prayers. Very joyful because this has gone live. Correct. Yes. Praise yes. God. Yes. Yes. Thank you so much. Yes, to all the viewers, stay connected, stay blessed, and stay connected with us. And so that whenever we are coming live, you can be notified. You can click on the like button so that you're every time notified whenever we come online. Okay. God bless you. Stay safe. Stay vigilant. Bye, Joel. Thank you. Bye. 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 Yes, bye, Sarah. Thank you very much. Thanks. Thank you.